To start, or the thing that we're going to do now is कि हमने reactions पढ़े थे कि higher potential gains electrons, lower potential loses electrons. Now we're going to talk about reactions that just seem to go on. ठीक है, these are मतलब इनका कोई नाम तो नहीं होता specifically. I'll just call them chain reactions. ठीक है, so we are going to talk about chain reactions now. Acha, you'll get an idea okay, once we do this, so you'll get an idea what I mean by that. Chain reactions में अच्छा chain reactions में क्या होता है कि you have let's say you have a reaction एक दो examples दिए हैं ठीक है अच्छा chain reactions specifically matter कहाँ पे करते हैं if I share this tab तो इसके अंदर आप देखोगे कि कुछ elements होते हैं where a lot of possibilities are possible. ठीक है vanadium को देखो ये bottom के ऊपर ठीक है vanadium has almost how many equations? There are five. हाँ ठीक है they almost ये bottom के ऊपर ना they almost five equations related to vanadium. तो यहाँ पे ना थोड़ा सा इशू आएगा कि चेन रिएक्शंस होने के चांसेस होंगे कि a lot of things are possible for this substance. बहुत सारे एलिमेंट्स हैं उनके लिए दिस इज नॉट ट्रू जैसा सोडियम है सोडियम का there's only one reaction given. तो वहां पे ना चेन रिएक्शन रिएक्शन हैपनिंग देन अनदर रिएक्शन हैपनिंग ठीक है उस तरह का सिनेरियो नहीं होगा there's only going to be one reaction. ठीक है निकल की भी एक ही इक्वेशन गिवन है सोडियम की एक इक्वेशन गिवन है so that it's not an issue with these elements. मैंगनीज के साथ इशू हो सकता है मैंगनीज को देखो Mn lots and lots of उसके ढेर सारे कंपाउंड हैं and lots of possibilities. तो मैंगनीज के साथ इशू होगा ठीक है there would be lots of possibilities for मैंगनीज तो टू एन एक्सटेंट Fe वगैरह इनके साथ भी जिनकी मल्टीपल इक्वेशंस गिवन होंगी तो you'll understand this in a while ठीक है पहले याद रखना कि चेन रिएक्शंस के बारे में ना आपने सिर्फ तब सोचना है if a substance like magnesium or vanadium is present, so there are possibilities of a lot of reactions happening. So I'm going to do one reaction first, ठीक है, which is पहले simpler chain reactions से start करते हैं. Let's say they're asking us to write a reaction of tin with iodine and that iodine is present in excess. ठीक है, so you have to figure out a reaction. Okay, what's going to happen? Now in this particular reaction, स्टेप्स वही फॉलो करोगे आपके पास रिएक्टेंट्स क्या है अच्छा इट्स नॉट एन आयोनिक कंपाउंड सो देयर आर नो तो टिन और आयोडीन ही है ठीक है तो आप क्या करोगे आप यू विल गो टू द डेटा बुकलेट एंड यू गोइंग टू ट्राई एंड फिगर आउट कि जी टिन जो है ना उसकी इक्वेशंस क्या है अच्छा सॉरी आई एम नॉट शेयरिंग दिस टैब अच्छा सो टिन प्लस आयोडीन ठीक है एक्सेस के अंदर इसका आई वांट टू फिगर आउट द रिएक्शन आई वांट टू प्रेडिक्ट व्हाट द रिएक्शन इज गोइंग टू बी नाउ अच्छा नाउ टिन और आयोडीन का Okay, when you have a reaction of tin with iodine and iodine is in excess, so the issue with that is that tin के अंदर ना you have to look at the equations in the data booklet. ठीक है मैं data booklet share कर रहा हूँ ठीक है so here's a data booklet. ठीक है here's your data booklet और इसके अंदर if you have a look तो यहाँ पे ना there's tin. तो tin की ना एक equation है there's no other equation given for tin in this. ठीक है 1 second. अच्छा there's no other equation given for tin in this case. तो यही एक इक्वेशन हम जाके उसके अंदर कॉपी कर लेंगे ठीक है सो इट्स 10 2 plus which gains 2 electrons and it's in equilibrium with Sn and the value for that is कि अगर वहां पे जाके देखो ना there's a value given it's minus 0.14 volts ठीक है that value is provided so there's only one equation in the entire data booklet that involves tin ठीक है that's it अच्छा दूसरी क्या चीज है आयोडीन है
आयोडीन के भी जाके अगर देखोगे ना, दिस आई के अंदर देखना है। अच्छा, आयोडीन के अंदर भी ना दिस जस्ट वन इक्वेशन, आयोडीन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड इट्स 2I-1 यहाँ पे, तो 0.54 वोल्ट्स। ठीक है, सो देयर ओनली वन इक्वेशन गिवन फॉर आयोडीन। ठीक है, सो इट्स आयोडीन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड इट्स 2I-1 and the value is given as 0.54 volts. इन दोनों के अलावा ना देयर इज नो अदर ऑप्शन, सो यू हैव टू रिएक्टेंट्स एंड देयर जस्ट टू इक्वेशंस। उसके अंदर द हायर पोटेंशियल इक्वेशन इज द वन दैट्स गोइंग टू gain electrons and the lower potential one is the one that's going to lose electrons. तो ये आपके पास high E naught है and this is your lower E naught. This is the one that's going to lose electrons, this is the one that's going to gain electrons. तो simple reaction basically खत्म हो गया। आपने क्या करना है, अब जाके आपने दोनों को एड अप कर देना है। ठीक है, सो यू गोइंग टू एड अप द टू रिएक्टेंट्स, इलेक्ट्रॉन्स गेन और लॉस्ट भी इक्वल है। ठीक है, द टू इलेक्ट्रॉन्स बीइंग लॉस्ट एंड द टू इलेक्ट्रॉन्स दैट आर बीइंग गेन्ड, तो दोनों के रिएक्टेंट्स को सम अप करो और उनके प्रोडक्ट्स को भी आप सम अप करो। ठीक है, योर रिएक्टेंट्स आर 10 फर्स्ट वाले में एंड द सेकंड वन हैज द रिएक्टेंट आयोडीन, दैट्स इट। और दूसरे वाले में क्या है, इट इज tin 2 plus and the other one is 2I-1. ठीक है, these are your two reactants and your equation kind of looks complete. ठीक है, that's your equation. इसका potential भी निकालो, the E naught of this cell is going to be higher potential minus lower potential, so it's 0.54 minus 0.14. ठीक है, difference आप निकालो, it's minus 0.14, जो भी आता है इसका 0.68 volts आता है। ठीक है, so it's kind of a positive potential, so that's fine. तो ये हमने रिएक्शन उसी तरह प्रेडिक्ट कर लिया। सो इट वाज अ वेरी सिंपल रिएक्शन, देयर वर जस्ट टू इलेक्ट्रोड्स इन्वॉल्वड, ओनली टू इलेक्ट्रोड्स वर इन्वॉल्वड। Higher potential one ended up gaining electrons, lower potential one ended up losing electrons. ये क्लियर है सारों को अभी तक? ज़ेबेदा, इज दिस क्लियर? बाकी भी, खदीजा, इज दिस क्लियर? Yes, sir. अच्छा, सो अच्छा, now the issue is कि the reaction actually doesn't stop here. अब ये देखो कि ये जो पहला रिएक्शन हुआ है, once this reaction has happened, तो आपका जो भी बीकर होगा, कंटेनर होगा, ठीक है, let's say this is your container, what would it contain? It's going to contain products क्या बने? It contains tin 2 plus, it contains 2I-1. तो आपके जो original reactants हैं, they've reacted and they've produced these two things. One is tin 2 plus, the other one is 2I-1. ठीक है, these are your products that are produced. लेकिन ऊपर टॉप पे देखो कि राइट एट द बिगिनिंग यू वर टोल्ड कि इट वाज आयोडीन इन एक्सेस, तो इसका मतलब है कि अभी भी ना आयोडीन जो है ना वो एक्सेस में बची हुई है। ठीक है, एक्सेस मींस कि देयर इज लेफ्ट ओवर आयोडीन, सो दैट मींस देयर माइट पॉसिबली बी अनदर रिएक्शन। तो पहला रिएक्शन हो गया, लेकिन whatever is produced in the container, ठीक है, इसको उठा के इधर नीचे रख देते हैं। अब इसका फिगर आउट करते हैं कि will there be another reaction or not. अच्छा, so I have tin 2 plus, I have 2I-1 and I have I2 in the container. The first reaction has already happened. Let's try and figure out whether another reaction is in the books or not. तो अब क्या चीज़ है आपके पास कंटेनर के अंदर? there's tin 2 plus, there's 2I-1 and there is I2. ये आपके रिएक्टेंट्स हैं। तो आप फिर से डेटा बुकलेट खोलो और देखोगे क्या क्या पॉसिबल रिएक्शंस आर पॉसिबल। तो स्टार्टिंग विद I2 का एक ही रिएक्शन था, व्हिच वाज I2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड इन इक्विलिब्रियम विद 2I-1। इसमें I-1 भी आ गया, I2 दोनों आ गए। दैट वाज द ओनली वन पॉसिबल, तो वो तो 0.54 वोल्ट्स है। द अदर वन tin 2 प्लस है, मतलब इन दोनों का तो आपने इलेक्ट्रोड बुकलेट से ना, डेटा बुकलेट से, you've written down the reaction. अब tin 2 प्लस का फिगर आउट करना है, तो you have a look at tin 2 plus. ठीक है, इसके अंदर देखो कि
टिन 2 प्लस कहाँ पे? पहले हमने टिन का किया था, अब वो टिन 2 प्लस में कन्वर्ट हो चुका है। अच्छा, एम के बाद एस आता है, ठीक है, इट्स प्रॉब्ली ऑन द नेक्स्ट पेज। अच्छा, यहाँ पे, अच्छा, इफ यू लुक केयरफुली, टिन 2 प्लस इज इन्वॉल्व इन टू रिएक्शंस, वन इज दिस वन, ठीक है, यहाँ पे भी है, एंड द अदर वन इज दिस वन। सो आई एम गोइंग टू राइट बोथ ऑफ देम, ठीक है, आई एम गोइंग टू ऐड बोथ ऑफ देम। दोनों के अंदर टिन 2 प्लस है, एक में टिन 2 प्लस इज गेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म टिन, ये आई थिंक वाज माइनस कितना है वहां पे, नहीं, नहीं, कितना, टिन 2 प्लस minus 0.14 volts. So this is minus 0.14 volts. The other one is tin 4 plus, which gains 2 electrons to form tin 2 plus. Yeah, reversible, ठीक है. This E naught is given as 0.15 volts. एक दफा confirm कर लेते हैं, that's 0.15 volts. अच्छा, so now फिर से वही करना है. Higher potential is the one that's going to gain electrons. तो higher potential में तो कोई issue नहीं है. So you have higher E naught. It ends up gaining electrons. ठीक है, so that's fine, क्योंकि क्योंकि you have iodine, ठीक है, वो excess iodine अभी भी बचा हुआ पड़ा हुआ है, तो इसका मतलब है आयोडीन अभी भी रिड्यूस हो रहा है, बिकॉज इट्स द हाईएस्ट ई नॉट। सो आयोडीन की बारी आएगी तो आयोडीन वुड गेन इलेक्ट्रॉन्स अगेन, और प्लस आपने एक्सेस में ऐड किया हुआ है। अच्छा, द अदर वन, lower potential is the one that's going to lose electrons. अब lower potential was this one. This over here is your lower E naught. This is the one that's going to, it's going to lose electrons. लेकिन आप ये इक्वेशन सिलेक्ट नहीं करोगे क्योंकि who's going to lose electrons? It's tin that's going to lose electrons. लेकिन पहले रिएक्शन के बाद ना there is no tin. वो सारा किस पे कन्वर्ट हो गया था? tin 2 प्लस में। मतलब अगर आप पिछला रिएक्शन देखो ना, ओरिजिनली आपके पास टिन था, शुरू में बिल्कुल स्टार्ट में टिन था, बट आयोडीन एक्सेस पे था, तो इट कन्वर्टेड ऑल द टिन इनटू टिन 2 प्लस। तो टिन खत्म हो चुका है, ठीक है, नाउ योर कंटेनर हैज टिन 2 प्लस आयंस। तो ये वाला रिएक्शन दिस इज नॉट पॉसिबल क्योंकि देयर इज नो टिन, ये जो आपका सोल्यूशन है ना, देयर इज नो टिन, तो यू कांट रियली यूज दिस इक्वेशन बिकॉज टिन तो खत्म हो चुका है। तो अब बाय डिफॉल्ट कौन सी लोएस्ट ई नॉट है? लोअर ई नॉट इज द लास्ट वन, ठीक है, सो इट्स गोइंग टू लूज इलेक्ट्रॉन्स। और ये देखो कि आपके पास टिन 2 प्लस पड़ा हुआ है, ठीक है, योर सोल्यूशन, योर कंटेनर आफ्टर द फर्स्ट रिएक्शन, इट हैज टिन 2 प्लस। तो आयोडीन is the one that's going to gain electrons, tin 2 plus is the one that's going to lose electrons, and you can write an overall equation और उसके reactants और उसके products आप add up कर सकते हो। Electrons balanced है, gain and lost। पहले वाले में जो the reactant is I2, and in the second one the reactant is tin 2 plus। अच्छा, product क्या है कि first one the product is 2I minus 1 और second one में जो product is tin 4 plus, ठीक है, so this reaction is happening और इसका जो ई नॉट सेल है ना, द ई नॉट सेल प्रोवाइडेड इज हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल, सो इट्स 0.54 माइनस कितना, 0.15, which comes out to be probably 0.39. It comes out to be 0.39 volts. अच्छा, मैं फिर से ना पूरा प्रोसेस ना दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूं कि यू स्टार्टेड ऑफ, ठीक है, क्योंकि दिस कैन गेट स्लाइटली कंफ्यूजिंग, तो मैं पूरा प्रोसेस दोबारा स्टार्ट से एक्सप्लेन कर रहा हूं। यू स्टार्टेड ऑफ कि द रिएक्शन वाज बिटवीन टिन एंड आयोडीन वाज इन एक्सेस। तो हमने कहा कि जी सबसे पहले तो टिन एंड आयोडीन दोनों की राइट डाउन ऑल इलेक्ट्रोड रिएक्शंस, सो वी रोट डाउन द टू इलेक्ट्रोड रिएक्शंस, देयर वर ओनली टू पॉसिबल, टिन, एक में टिन था और दूसरे में देयर वाज आयोडीन। हायर पोटेंशियल ने गेन किए इलेक्ट्रॉन्स, नीचे वाला हायर पोटेंशियल है, ठीक है, दिस वन एंडेड अप गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स, ऊपर वाला लोअर पोटेंशियल इज द वन दैट एंडेड अप लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स, एंड वी मेड अप एन ओवरऑल इक्वेशन which came out to be this, कि reactants को sum up कर लिया, products को भी sum up कर लिया, and we figured out कि जी इस reaction के अंदर ना जो tin था ना, that got converted into tin 2 plus, and जो iodine थी ना, that got converted into I minus 1। तो
After the first reaction, these were present in the solution. ठीक है, these things were present in the solution. तो हमने कहा कि पहला रिएक्शन तो हो गया खत्म. बीकर में अब क्या पड़ा हुआ है? टिन 2 प्लस पड़ा हुआ है एंड 2i-1 पड़ा हुआ है. ठीक है, ये दोनों खत्म हो चुके हैं. टिन एंड आयोडीन हैव रिएक्टेड. अच्छा, बट आयोडीन हैज नॉट फिनिश्ड क्योंकि बिल्कुल स्टार्ट के अंदर यू वर टोल्ड के आयोडीन वाज इन एक्सेस. तो इसका मतलब है आप पहले रिएक्शन खत्म होने के बाद ना, your container still had iodine which is in excess. तो अब after the first reaction is done, your container, अच्छा रिमेम्बर इसमें कोई गैप नहीं होगा कि फर्स्ट रिएक्शन हुआ, मतलब वो इकट्ठा ही हो रहा होगा सारा. ठीक है, तो so after the first reaction is done, the container has tin 2 plus ions, it has 2i-1 and it has iodine. तो वी रोट डाउन इक्वेशंस इलेक्ट्रोड रिएक्शंस के अब क्या होगा, इनके बीच में कोई और रिएक्शन होगा? इज द फर्स्ट रिएक्शन फॉलोड बाय अनदर रिएक्शन? तो हमने फिर इन तीनों के बीच में देखा कि इज देयर अनदर पॉसिबिलिटी फॉर अनदर रिएक्शन हैपनिंग. तो उसके अंदर देयर वाज आयोडीन व्हिच वुड गेन इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म 2i-1 इक्विलिब्रियम में. ठीक है, और फिर हमने टिन 2 प्लस की दो इक्वेशंस अवेलेबल थी. One in which it was gaining electrons, the other one in which it was losing electrons. We wrote down all reactions that involved tin 2 plus, or that involved I-1, or that involved I2. ठीक है, we wrote down all the reactions. और उसमें जो highest potential that ended up gaining electrons and the lowest potential ended up losing electrons. ये बीच वाला लोएस्ट हमने रिमूव कर दिया था क्योंकि उसके अंदर इफ इट वर लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स तो टिन था ही नहीं आपके पास, तो आई रिमूव दैट रिएक्शन. तो एंड रिजल्ट इज कि after the first reaction these things are again starting a reaction among between themselves, and we figured that out. हमने वो reactants add up किए, products add up किए, and we got this reaction. ठीक है, so after the first reaction has happened, it is followed by another reaction. सही है. So is this idea clear? Tazeen, is this clear? Hafsa, is this clear? Yes, sir. अच्छा, so remember कि you have to watch out for these chain reactions, लेकिन especially for substances जिनकी ना there multiple equations. एक वेनेडियम वाला करेंगे, वो तो खैर बहुत लेंथी होगा. So whenever you have multiple equations, uh, always think are the reactants going to start a reaction again? तो अच्छा, इसमें फिर ना एक ओवरऑल इक्वेशन होगी. I have two equations. So I'm now going to make because in this case there are two reactions happening. So what I'm going to do is I'm going to make an overall equation. कि भाई overall क्या हुआ है? Overall equation क्या है कि दोनों reactions को sum up कर लो. So first reaction number one. What was reaction number one? ठीक है, उसको पहले जाके देख लेते हैं. रिएक्शन वन वो ऊपर था, टिन प्लस आयोडीन, टिन 2 प्लस और 2i-1. So that was forming tin 2 plus, tin plus iodine. It ended up forming tin 2 plus 2i-1. So what's reaction number two? Reaction number two जो है ना, that's जो भी इसके ऊपर ही लिखा हुआ था, उसमें था कि आयोडीन अगेन रिएक्टेड बट दिस टाइम विद टिन 2 प्लस, जो पहले रिएक्शन में फॉर्म हुआ था. ठीक है, फर्स्ट रिएक्शन में जो टिन 2 प्लस फॉर्म हुआ था वो दोबारा एक्सेस आयोडीन के साथ रिएक्ट कर रहा था एंड एंडेड अप फॉर्मिंग tin 4 plus 2i-1 again. So what you're going to do is the same thing. Add up the reactants and add up the products. So what are my reactants? The reactants in this case are tin plus tin 2 plus 2i2. Okay, these are my reactants. And the other side I have my products. तो वो products को sum up कर लो. So the products in this case are it's tin 2 plus tin 4 plus 2i-1 plus 2i-1. ठीक है. So
so these are my reactants, these are my products, and I can simplify math की equation की तरह ना इसको simplify कर लो. क्या चीज रिमूव हो जाएगी? 10 2 प्लस बीच में से कट जाएगा. So your overall reaction that's happening is it's 10 reacting with 2I2 and the products are 10 4 plus 4I minus 1. ठीक है, that's your overall reaction. So this is your overall equation and this is your final equation. एक्सेस में सर जी सर मुझे सिर्फ एक चीज बताएं सर, ये बीच वाली जो इक्वेशन थी 10 2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स व्हिच मेक्स 10, सर वो आपने कैंसिल क्यों किया है? क्योंकि वो तो सबसे लोएस्ट ई नॉट तो उसका था. हाँ, अच्छा वो मैं बताता हूँ एक सेकंड. क्या नाम क्या है आपका? मुझे आवाज. सर ताहा. अच्छा ताहा, ठीक है. चलो ताहा, ये मैंने इसलिए कैंसिल की है कि ठीक है वो लोएस्ट है ना, तो जी ये लोएस्ट क्या करता है? इलेक्ट्रॉन लूज करता है. जी सर. तो इसने इलेक्ट्रॉन लूज करना है, तो लूज करना किसने? 10 ने करना है ना लूज. जी 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 सर. तो मुझे बताओ कि यहाँ पे जो तुम्हारे पास चीजें बची हुई है इसमें 10 तो है ही नहीं. अच्छा ठीक ठीक. ठीक है, मतलब वो था ना कि आप लोएस्ट सिलेक्ट करते हो, लेकिन वो उसके पीछे लॉजिक ये होती है लोएस्ट सिलेक्ट करने की कि वो चीज आपके पास है भी कि नहीं है. वो अगर है ही नहीं तो उसका फायदा क्या है? सही ठीक है. होगा सर. तो ठीक. ये लाजमी, मतलब ये जब भी आप हाईएस्ट पोटेंशियल देख रहे हो, लोएस्ट पोटेंशियल देख रहे हो, वो भी देख लो कि वो चीज आपके पास है या नहीं है. ठीक है, ठीक. चलो ये. अच्छा, दिस इज योर चेन रिएक्शन. ठीक है, और इसमें ना ज्यादातर लोग ना इसके ऊपर आके ना रुक जाएंगे. वो कहेंगे चलो ठीक है हो गया कंप्लीट. उन्हें नहीं पता कि रिएक्शन ने आगे प्रोसीड करना है. एक्चुअली मैं 3 एग्जांपल्स दे दूंगा जो जो सफिशिएंट होंगी. बाकियों के अंदर इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि चेन रिएक्शन होगा या नहीं होगा. अच्छा, एक मैं उसका बता देता हूँ शॉर्टकट के. जस्ट वन सेकेंड, इसको मैं. अच्छा, कुछ मैं शॉर्टकट्स बता देता हूँ कि जिसके अंदर ना चेन रिएक्शन फिगर आउट ही नहीं करना. मैंने एक्चुअली ना ये जो किया था ना हमने, ये जो हमने किया था ऊपर दिस रिएक्शन, इसके बारे में ना मैंने कहा था कि ये मैंने गलत सेलेक्ट किया है क्योंकि क्योंकि चेन रिएक्शन मैंने पढ़ा ही नहीं था. इसके अंदर एक्चुअली ना चेन रिएक्शन होगा. और ये हमारे पास ना इक्वेशन तो आ गई थी. तो इसका चेन रिएक्शन जो है ना, इसका मैं शॉर्टकट बता देता हूँ. whenever you have Fe2 plus and MnO4 minus 1 reacting, और हम यहां तक पहुंचे थे ना, तो इसका हम कर देते हैं कि यहीं से ना हम कंटिन्यू कर लेते हैं. इसकी हमने सारी वर्किंग की थी. वो वर्किंग पीछे रहने दो. ये रिएक्शन ना अभी इसके पॉइंट, इस पॉइंट के बाद ना दोबारा रिएक्ट करेगा. ठीक है, तो हम इधर से ना इसको मैं यहां से ना कंटिन्यू कर रहा हूँ. ठीक है, जस्ट अज्यूम कि रिएक्शन हो चुका है. मैं जल्दी से कवर कर लूंगा. तो इधर मैं ऐड कर देता हूँ कि there's going to be a chain reaction. Another reaction would happen after this one. तो पहले तो इसको जाके ना जल्दी से नीचे कॉपी कर लेते हैं, इधर से कंटिन्यू करते हैं. अच्छा, हमने किया था कि इन दिस केस कि there's KMnO4 being added, MnO4 being added, और नीचे फ्लास्क के अंदर there is Fe+2 present. ठीक है, वो नीचे बॉटम पे ना फ्लास्क के अंदर है. एंड वी फिगर आउट द रिएक्शन. जो पहला रिएक्शन था वो हमने कर लिया. MnO4 की इक्वेशन लिखी, Fe+2 की लिखी, और हमने फिगर आउट कर लिया कि जी MnO4 -1 और Fe+2 जो है ना दे रिएक्ट विद ईच अदर, और वो एसिडिफाइड था. और उसकी पूरी हमने इक्वेशन लास्ट क्लास के अंदर बनाई थी. ठीक है, सो गो बैक. और अच्छा, क्या 3 आगे क्या बन रहा है? MnO2 और Fe+3. ठीक है, जस्ट वन सेकेंड. अच्छा, सो इट्स फॉर्मिंग MnO2 प्लस Fe+3 प्लस H2O, और ये 3 था. ठीक है, और दिस इज O कितने? 4. तो 4O, और ये कितने हुए? 4O. ठीक है, तो 8H+1. ठीक है, जस्ट लेट मी जस्ट क्विकली कंफर्म के डू आई हैव
अच्छा नहीं 2H2 और 4H+1 है, ठीक है। अच्छा इस रिएक्शन का ना चेन रिएक्शन 2H2O एंड 4H+1। अच्छा ये मैं क्विकली उसके ऊपर डेटा बुकलेट के ऊपर ही ये पहला वाला पार्ट तो मैं समझा देता हूँ। ये हम कर चुके हैं MnO4-1 Fe+2। तो लेट्स ओपन द डेटा बुकलेट। MnO4-1 है ना, MnO4-1 इसमें, ठीक है। हेre's द डेटा बुकलेट। अब इसमें ना MnO4-1 की इक्वेशन देखो कि अगर हम पीछे जाए ना M में, MnO4-1 इसमें गेन करता था इलेक्ट्रॉन, लेकिन उसकी ना ये वाली इक्वेशन आप सिलेक्ट करते थे क्योंकि ये इसका पोटेंशियल देखो 1.67 वोल्ट, मतलब वो हमने पूरी लिखी थी और फिर हमने किया था और हमने देखा था कि ये वाली जो इक्वेशन है ना ये हाईएस्ट पोटेंशियल है MnO4-1 का। तो आप इसको सिलेक्ट करते थे 1.67 वोल्ट्स। ये बाकी जो MnO4-1 की जो इक्वेशंस थी ना, देवर अदर इक्वेशंस एज वेल। MnO4-1 एक इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो हाईएस्ट पोटेंशियल हमने उसको सिलेक्ट नहीं किया था। MnO4-1 8H+1 गेन कर रहा है और इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है वो 1.52 था। तो हमने ये वाली इक्वेशन सिलेक्ट की थी, दिस वाज द हाईएस्ट पोटेंशियल, ठीक है। और फिर वो लूज करने की हमने Fe की सिलेक्ट की थी विच वाज 2+, कि Fe ना 2+ इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा था, वो हमारा लोएस्ट आ रहा था, मतलब 2+ की इलेक्ट्रॉन लूज करने की इक्वेशन एक ही थी। तो वी फिगर आउट कि दिस इज द रिएक्शन दैट्स गोइंग टू हैपन। नाउ द इशू इज कि आफ्टर दिस फर्स्ट रिएक्शन दैट हैज हैपेंड, आपके पास सोल्यूशन के अंदर क्या है once this reaction has happened? Once this reaction has happened, और let's assume कि यहाँ पे ना there is still excess Fe2+ present, ठीक है। कि अभी अभी मैंने ना ऊपर से ना एक दो ड्रॉप्स MnO4 के डाले और ये रिएक्शन हुआ है, तो इसका मतलब है कि देयर इज स्टिल अ लॉट ऑफ Fe+2। अभी अभी पूरी न्यूट्रलाइजेशन तो नहीं, वो जो इक्विवेलेंस पॉइंट है दैट हैज नॉट बीन रीच्ड, ठीक है। तो अभी हमने टाइट्रेशन स्टार्ट की है, immediately MnO4 fell into Fe+2 and this reaction took place, so there's still plenty of Fe+2 still remaining। तो आपका जो कंटेनर है ना दैट नाउ कंटेन्स Fe+2, इट स्टिल हैज Fe+2, सारा रिएक्ट नहीं हुआ, लेकिन साथ ही क्या प्रोड्यूस हो गया MnO2। तो आपके पास ना MnO2 भी आ गया इसमें, वो प्रोडक्ट बन गया पहले रिएक्शन में, ठीक है। वो अभी हमने जाके देखा था हाईएस्ट पोटेंशियल, सॉरी ये स्क्रीन नहीं शेयर करा, अभी हमने जाके देखा था कि क्योंकि आपने Fe+2, मैं फिर से एक्सप्लेन कर दूं ये वाला पार्ट, कि आप MnO4 डाल रहे थे Fe+2 में, शुरू के जो थोड़े से ड्रॉप्स MnO4 के आपने ऐड किए ना इसमें Fe+2 में, MnO4 went and reacted with Fe+2, ended up forming MnO2 and Fe+3, ठीक है। तो ये सारे फॉर्म हो गए। Fe+2 अभी भी रिएक्शन कंप्लीट नहीं हुआ, अभी भी Fe+2 पड़ा हुआ है, ठीक है। सो देयर इज स्टिल प्लेंटी ऑफ Fe+2, द रिएक्शन स्टिल गोइंग ऑन, ऊपर से MnO4 इज बीइंग एडेड, so the Fe+2 is slowly getting used up, but right now it hasn't gotten used up, ये बिल्कुल स्टार्ट है रिएक्शन का। तो Fe+2 अभी भी पड़ा हुआ है, लेकिन आफ्टर द फर्स्ट इनिशियल रिएक्शन, वो जो दो तीन ऊपर से आपने टैब खोला था MnO4 डाला था, सो राइट आफ्टर द बिगिनिंग ऑफ दिस रिएक्शन MnO2 फॉर्म हो गया। तो अब आपके फ्लास्क के अंदर क्या पड़ा हुआ है, MnO2 भी पड़ा हुआ है, और आपके फ्लास्क में H+1 भी पड़ा हुआ है, ठीक है। तो और वाटर भी पड़ा हुआ है और डिफरेंट चीजें पड़ी हुई है। इन एक जो एडिशनल चीज प्रोड्यूस होगी ना फ्लास्क के अंदर, राइट एज यू ओपन द टैप, ठीक है, बिल्कुल जैसे आपने टैप ओपन किया, तो अब फ्लास्क के अंदर जो एडिशनल चीज प्रोड्यूस होना शुरू होगी ना दैट इज MnO2, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि वो जो पहले रिएक्शन के अंदर MnO2 प्रोड्यूस हुआ है ना, क्या वो तो कोई रिएक्शन शुरू नहीं कर देगा। तो आई एम गोइंग टू राइट डाउन ऑल द रिएक्शंस ऑफ Fe+2, ठीक है। वो इधर से हम देयर इज 2 इलेक्ट्रॉन्स Fe+2 गेनिंग Fe, एक तो मैं Fe+2 की सारी पॉसिबिलिटीज लिख देता हूँ कि कहीं वो MnO2 तो अब रिएक्ट नहीं शुरू कर, वो वुडंट इट स्टार्ट रिएक्शन और नॉट, ठीक है। इसकी नॉट मुझे पता है 0.77 वोल्ट्स। Fe का देख लेते हैं, जस्ट वन सेकेंड। Fe+2 -0.44, दिस इज -0.44 वोल्ट्स। अच्छा, और तीसरी MnO2 की ढूंढते हैं इक्वेशन, क्योंकि MnO2 प्रोड्यूस हो चुका है। तो अब देखना ये MnO2 तो कहीं आपस में रिएक्शन नहीं कर रहा। तो इफ यू हैव अ लुक एट द डेटा बुकलेट, तो इसमें ना एक इक्वेशन है MnO2 की, ये वाली जिसको मैंने हाईलाइट किया है।
एक ही है, कहीं और मेरा नहीं ख्याल मुझे MnO2 मिल रहा है, एक और मिल रहा है, वो अगली वाली है, उसको भी देख लेते हैं. So there's MnO2 plus 4H plus 1 plus 2 electrons in equilibrium with Mn2 plus 2H2O. ठीक है, and the E naught is 1.23 volts. तो the E naught is 1.23 volts. ये मैंने वहां पे 1 second sharing this tab. अच्छा, ये तीनों मैंने लिख दिए. अच्छा, मैं इसमें ना MnO4 नहीं लिख रहा कि लेट्स से मैंने वो 2-3 ड्रॉप्स डाले थे MnO4 के और फ्लास्क के अंदर, बिल्कुल स्टार्ट के अंदर, और लेट्स से मैंने टैप ऑफ कर दिया, तो अब मजीद MnO4 बीच में नहीं, वो जो शुरू में जो MnO4 डाला था ना, वो रिएक्ट करके उसने ये बना दिया, ये प्रोडक्ट्स बना दिए. ठीक है, तो लेट्स से मैंने वो थोड़ा सा MnO4 डाल के मैंने टैप ऑफ कर दिया, तो वो जो स्टार्ट में जो MnO4 थोड़ा सा ऐड किया था ना, उसने रिएक्शन कर दिए, MnO2 फॉर्म कर दिए, तो MnO4 हैज गॉटन यूज्ड अप. ठीक है, लेट्स अज्यूम कि टैब जो है ना वो अभी फिलहाल ऑफ है, तो मजीद MnO4 बीच में नहीं आ रहा. What I'm just seeing is कि what I'm trying to figure out is कि whether there's going to be a secondary reaction that would happen. तो ये मैंने सारों के लिख लिए कि Fe+2 अभी भी पड़ा हुआ है फ्लास्क के अंदर, MnO2 प्रोड्यूस हो गया और H+1 भी पड़ा हुआ है. So if you have a look at this reaction, तो इसमें हाईएस्ट पोटेंशियल किसका है? इसका है. तो MnO2 बना हुआ था, H+1 भी पड़ा हुआ है, तो ये इक्वेशन तो ठीक है. This is the highest E naught equation, and this is going to gain electrons क्योंकि आपके पास MnO2 भी है और आपके पास H+1 है, क्योंकि पहला रिएक्शन जो हुआ है ना, उसके साथ ही MnO2 प्रोड्यूस हो गया. तो हमने ये फिगर आउट किया कि MnO2 तो मजीद फर्दर फिर दोबारा इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहता है. Who's going to lose electrons? लोएस्ट पोटेंशियल, इसको मैं हटा देता हूँ क्योंकि Fe जो है वो तो है ही नहीं, वो तो शुरू में भी नहीं था, बाद में भी नहीं है, कहीं कहीं पे भी नहीं है Fe. तो इसको हम हटा देते हैं, दिस इज नॉट द लोएस्ट. तो लोएस्ट E नॉट ये है, और ये जाएगा बैकवर्ड के अंदर. ठीक है, तो आई फिगर आउट के वो जो MnO2 प्रोड्यूस हुआ था ना पहले रिएक्शन के अंदर, दैट अगेन स्टार्ट्स टू रिएक्ट एंड अनदर रिएक्शन हैपेंस. और इस रिएक्शन को हम, अच्छा इसमें ना वो इलेक्ट्रॉन्स इक्वल नहीं है, पहले तो इसको हम इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं. ठीक है, सो आई मल्टीप्लाइड दिस इक्वेशन बाय 2 ताकि वो इलेक्ट्रॉन्स इक्वल हो जाए, और फिर इनके आई एम गोइंग टू ऐड अप द रिएक्टेंट्स एंड द प्रोडक्ट्स. और मैं जल्दी से इसको लिख लेता हूँ कि रिएक्टेंट्स के मेरे पास आई हैव MnO2, आई हैव 4H+1, 2 इलेक्ट्रॉन्स, नहीं 2 इलेक्ट्रॉन्स तो कैंसिल आउट हो जाएंगे. दूसरी साइड पे रिएक्टेंट के Fe2+. ठीक है, दैट्स, अच्छा प्रोडक्ट क्या है, इट्स Fe3+, और दूसरे वाले प्रोडक्ट के Mn2+ प्लस 2H2O. ठीक है, सो दिस, ये एक सेकेंडरी अब रिएक्शन शुरू हो गया कि MnO2 जो प्रोड्यूस हुआ था ना, that MnO2 has gone and it has started another reaction. So it doesn't, so this reaction starts after the first reaction, which is this one. So फिर से ना quickly, let me quickly go over this. कि आपने MnO4-1 और Fe+2 का ना रिएक्शन किया. You opened the tap, you added, let's say, a few drops of MnO4-1 into Fe+2. Immediately ये आप पहले फिगर आउट कर लो, MnO4-1 और Fe+2 का हमने, आप वर्किंग करो and you would figure out कि this is the reaction that happens. ठीक है, and as soon as the first few drops react, your solution then starts producing MnO2. तब आपके रिएक्शन जो भी फ्लास्क है ना, उसके अंदर there is MnO2 being produced. And फिर आप सेकेंडरी रिएक्शन देखोगे कि would this MnO2 start reacting with something. तो आप देखोगे कि जी आपका फ्लास्क के अंदर क्या है, there is Fe+2 still remaining, MnO2 साथ ही प्रोड्यूस हो गया, तो there is MnO2 and acidified है, तो H+1 भी है. तो you'll try and figure out कि whether MnO2 is going to do something.
तो वो हमने यहाँ पे फिगर आउट किया. वी रोट डाउन इक्वेशंस फॉर MnO2, वी रोट डाउन इक्वेशंस फॉर Fe+2, दो इक्वेशंस Fe+2 की लिखी. There was one equation available for MnO2. We wrote those down and we figured out that MnO2 came out to be the highest potential, which means that MnO2 still wants to gain electrons, and it would form Mn2 plus. And on the other side you have Fe2 plus, जो हमने select की, that ended up losing electrons. तो इसका मतलब है वो जो MnO2 प्रोड्यूस हुआ था ना फर्स्ट रिएक्शन में, इट स्टार्टेड अनदर रिएक्शन विद Fe2 प्लस. प्रोड्यूस वही कर रहा है, उसको ऑक्साइड कर रहा है Fe3 प्लस में. MnO4 भी यही कर रहा था. सो इट्स अ टू स्टेप रिएक्शन कि पहले MnO4 ने Fe2 प्लस को ऑक्साइड किया Fe3 प्लस में इस साइड पे, और फिर जो MnO2 प्रोड्यूस हुआ है उसने फिर दोबारा से रिएक्शन शुरू कर दिया, और वो भी Fe2 प्लस को वही कर रहा है, Fe3 प्लस में कन्वर्ट कर रहा है. डिड यू गेट दिस आइडिया? ये वाला कहाँ समझ आइए? जी सर. तो ठीक, ये वाला पार्ट मुश्किल है. वो जो पिछले थे ना, ये मैं 3 एग्जांपल्स करूंगा, वो तीनों, ये वाला तो हमने खैर बहुत जल्दी में किया है. पिछला होपफुली क्लियर होगा. ये मैं 3 एग्जांपल्स करूंगा जो जो है ही सिर्फ 3 एग्जांपल्स. ठीक है, आज तक 3 एग्जांपल्स बस है जिसके अंदर चेन रिएक्शन होता है. ठीक है, सो रिमेंबर ये वाला इंपॉर्टेंट है एक्चुअली. ये वाला इंपॉर्टेंट इसलिए कि MnO4 के बहुत सारे मोल्स में भी क्वेश्चंस आ रहे होते हैं. इससे मैं थोड़ा सा इसमें कुछ चीजें ऐड करूंगा, वो फिर हम कल कंटिन्यू करते हैं. कल स्कूल की छुट्टी तो नहीं है किसी? सर कल P5 की क्लास होगी ना, फ्राइडे है. हाँ, लेकिन कोई ऑफिशियल हॉलीडे तो नहीं है ना कल? नहीं नहीं सर, कल तो नहीं. अच्छा चलो ठीक है, कल P5 है. ठीक है, चलो ठीक है. ओके देन, टेक केयर, अल्लाह हाफिज. अल्लाह हाफिज़ सर.